Okay, welcome students. Good morning. In today we start with the lecture 3 Thermodynamics Engineering Thermodynamics Unit 1 Fundamental of Thermodynamics. Okay, in last session we studied about types of system, classification of system. After that we study homogeneous system and heterogeneous system. Homogeneous, that is constant chemical composition and physical structure. Heterogeneous, different chemical composition and physical structure. Okay, after that we studied macro and microscopic approach. Macroscopic, that is a statical approach, classical approach, and microscopic, that is a statical approach. Macro means big, micro means small. Macro means macro means average, micro means each molecule studied. Okay, so macro is a easy way and micro is a complicated way. Okay, after that we studied different definitions like state, properties, process, path, cycle. What is state? Condition of a system at a particular moment defined by property. Okay, after that we define property. What is a property? Property, the measurable and observable characteristics of the system like pressure, volume, temperature, that is a property. After that we studied classification of thermodynamic property, intensive and extensive. What is intensive and what is extensive? Intensive, independent on mass. Extensive, dependent on mass. Extensive, that is a intensive, independent on mass. Extensive, depend on mass. Okay, so like independent on mass is a pressure, volume, pressure, temperature, density, that is a extensive property, sorry, intensive property, independent on mass. And extensive property which depends on mass, like mass, volume. Okay, after that we studied the definitions like path, process, cycle. Okay, path, what is a path? Path is a path is a process. Path, a system passes through continuous series of equilibrium state during a change of state, then it is called as a path, and that followed process is called as a process. After that we studied a cycle. Cycle means what? Initial and final state are same, means various processes are performed in such a way that initial and final state are identical to each other, that is called as a thermodynamic cycle. Okay, in last session we studied uh, thermodynamic cycle up to now. We studied the equilibrium. Okay, when a system is in thermodynamic equilibrium. Okay, system is in thermodynamic equilibrium when it is in mechanical equilibrium, thermal equilibrium, and chemical equilibrium, then the system is called as a in thermodynamic equilibrium. Okay, when we studied a system. Okay, सिस्टम आपने कंसिडर कर दिए, अभी वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं, आप कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए वो सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम होनी चाहिए? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. आपको तो तीन पता है, सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है. ओके, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, मैकेनिकल मतलब क्या आया? फोर्स आ गया. अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो वो सिस्टम मैकेनिकली इक्विलिब्रियम नहीं होगी. ओके, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम कब होगी सिस्टम? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, तो सिस्टम किस में होगी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अ नो अनबैलेंस्ड फोर्स in the interior of the system and surrounding, that is called as a mechanical equilibrium. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, नो अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, तभी वो सिस्टम क्या होगी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी. अभी नेक्स्ट है अपना थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल मतलब क्या आ गया? टेम्परेचर. ओके, अगर आपकी सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा तो वो सिस्टम के अंदर और बाहर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है. हीट कब ट्रांसफर होती है? जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, तभी हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगी. अगर दोनों टेम्परेचर सेम है तो उसमें हीट नहीं ट्रांसफर होगी. जैसे कि चाय का कप, चाय ले लिया मैंने कप में, तो चाय क्या होगा? पहले गर्म हो जाएगा, गर्म था, वो चाय क्या करेगा? अपनी हीट सराउंडिंग को देगा. बराबर. अगर सिस्टम एज अ कप कंसिडर कर दिया तो कप के अंदर चाय है जो कि है हाई टेम्परेचर है, वो अपनी हीट किसको देगा? सराउंडिंग को देगा. आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? चाय
और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो जाएगी, अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होगा, आपका सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अ नो टेम्परेचर डिफरेंस between system and surrounding, that is called as a thermal equilibrium. Mechanical equilibrium, no unbalanced force between system and surrounding. Thermal equilibrium, no temperature difference between system and surrounding, that is system and surrounding are at same temperature, that is called as a thermal equilibrium. Okay, अभी लास्ट है जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल मतलब क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग और सिस्टम के अंदर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ऑल केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स आर सेम, that is called as a chemical equilibrium. A system is said to be in chemical equilibrium when there is a no chemical reaction between system and surrounding, that is called as a chemical equilibrium. Mechanical equilibrium, no unbalanced force. Thermal equilibrium, no temperature difference. Chemical equilibrium, no chemical reaction. Okay, when a system is in mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium, a system is said to be thermodynamic equilibrium. Okay, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है when a system is in thermodynamic equilibrium, explain। तो आपका बताना है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या। सिस्टम जब थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम होगी तब भी आपको सिस्टम कैसे मिलेगी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मिलेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जब उसमें नो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। उसके बाद बताना है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद आपको पूछना है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या है, देयर इज अ नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये आपके इक्विलिब्रियम के डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट है अभी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस मतलब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, और नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, आपको एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ओके, तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको मैंने पाथ की डेफिनेशन बताई थी। पाथ मतलब क्या है, व्हेन अ सिस्टम possess in a continuous series of equilibrium state from one equilibrium state to another equilibrium state. ओके, मतलब आपको एक साइड से एक इक्विलिब्रियम स्टेट से सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाने तक आप जब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट चले जाते हैं तभी आपको क्या मिलता है, पाथ मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक बलून का एग्जांपल दिया था, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर मैंने क्या की थी, एक्सपांड की थी। ओके, अभी उसी तरह हमें क्या डिफाइन करना है, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी-स्टैटिक मतलब क्या बोला मैंने, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अभी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड इन सच अ मैनर दैट सिस्टम रिमेन्स इनफाइनेटसिमली क्लोज। इनफाइनेटसिमली मतलब वेरी स्मॉल, क्लोज टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल टाइम्स। मतलब क्या है, मैं सिर्फ चेंजेस इतने माइनर लेवल पे करूँगा कि उसके थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो स्टेट क्या होगी, पिछले स्टेट से नियर अबाउट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। मतलब कैसे, जैसे कि मुझे यहाँ से 10 मीटर आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, हर 1 मीटर पे उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट ले लूँगा। ओके, जैसे कि क्वासी-स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, डायग्राम निकाली है। एक सिलेंडर लिया है। ओके, सिलेंडर के अंदर क्या है, गैसेस है। ओके, सिलेंडर के अंदर क्या है, गैसेस है। गैसेस में देखो सिलेंडर है, पिस्टन है। ओके, पिस्टन के ऊपर मैंने क्या लगा है, एक एक ऐसे करके वेट लगा है। देखो, आपने देखा फिगर में। ओके, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, जिस गैस को मैंने क्या कर दिया अभी, कॉम्प्रेस्ड गैस है। ओके, कॉम्प्रेस्ड गैस है तो वहाँ पे पिस्टन के ऊपर मैंने क्या रखा है, वेट्स रखे, वेरियस वेट्स रखे हैं। ओके, और ऊपर क्या रखे, स्टॉपर्स लगाए हैं, जैसे कि पिस्टन ऊपर जाएगा तो पिस्टन की लास्ट पोजीशन क्या रहेगी, वो स्टॉप करके ऊपर रहेगी। ओके, अब इस साइड देखो, आपकी पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम में आपको पॉइंट्स दिखाए 1 2। ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट पे देखो, आपका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और प्रेशर क्या है, कम है। मतलब वो जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी आपकी, जहाँ पे आपका प्रेशर कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके,
और जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है आपका, प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। जैसे अभी फिगर में देखो आपके पिस्टन और सिलेंडर में जो गैस है वो गैस क्या हुआ है आपका, कॉम्प्रेसर कंडीशन में है। गैस क्या है, कॉम्प्रेस है। कॉम्प्रेस होने के इस वजह से क्या है, उसका प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है, बराबर है। मतलब फर्स्ट पोजीशन आपकी दिखाई है फिगर में, ओके। अगर मैंने क्या कर दिया, सब वेट एक साथ ही एकदम से निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, वो जो कंप्रेसर गैस है वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा। तो पिस्टन आपका क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन से डायरेक्टली पिस्टन कहाँ जाएगा, सेकंड पोजीशन तक जाएगा, मतलब स्टॉपर के यहाँ तक जाएगा। और आपको जो स्टेट मिलेगा, फर्स्ट स्टेट से डायरेक्टली कहाँ मिलेगा, डायरेक्टली सेकंड स्टेट मिल जाएगा। बीच वाले कौन से भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मिलेंगे, समझ गए। मतलब क्या बोला मैंने, फर्स्ट पोजीशन कैसी थी, गैस कंप्रेस था, मैंने क्या किया, एक साथ सब वेट निकाल दिए तो पिस्टन डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका, एक्सपांड हो जाएगा। डायरेक्टली एक्सपांड हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो कहा जाएगा आपका सेकंड पोजीशन तक जाएगा। मतलब बीच में मुझे कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मिलेगी, मतलब कोई, उसको बोलते हैं हम नॉन कोसिस्टैटिक प्रोसेस। अभी क्या करता हूँ मैं, पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर वेट है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेट रिमूव कर दूंगा, थोड़ा सा वेट रिमूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर हो जाएगा। कैसे, ड्यू टू गैस कॉम्प्रेस्ड है, वेट लगाया था, थोड़ा सा वेट रिमूव करूंगा तो पिस्टन थोड़ा सा आगे मूव जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट फर्स्ट दिखाई, देखो क्रॉस वाले, पहले क्रॉस तक जाएगा, फिर वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वो स्टेट इक्विलिब्रियम होने दी, उसके बाद फिर से थोड़ा वेट रिमूव कर देगा, फिर मुझे थर्ड वाला क्रॉस मिल जाएगा, फिर से मैंने थोड़ा वेट रिमूव कर देगा, फिर से मुझे फोर्थ वाला इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगा। ऐसे करते करते मैं कहाँ तक चला गया, स्टॉपर के यहाँ तक, मतलब कहाँ तक, सेकंड पोजीशन तक। मतलब मैं क्या कर दिया, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो करते ही चला गया। तो उसको क्या बोलते हैं, कोसिस्टैटिक प्रोसेस, ओके। दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज अ पाथ। वो क्या करता है, एक पाथ फॉलो करता है। मतलब क्या है, डायरेक्टली एक्सपांड नहीं होता। एक्सपांड कैसे होता है, थोड़े थोड़े लेवल पे, मतलब वेट एकदम से रिमूव नहीं किए मैंने, वेट क्या किया, थोड़े थोड़े रिमूव किया, जिससे क्या हो गया, मेरी जो स्टेट थी सिस्टम की वो क्या रही, कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम में रहती चली गई। तो उसको बोलते हैं कोसिस्टैटिक प्रोसेस, okay, when the process proceed in a such a manner that the system remain infinitely simply close to an equilibrium state at all times, that is called as a quasi-static process। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन quasi-static process and explain with example। तो आपको पहले तो quasi-static process क्या है वो आपको डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करते वक्त आपको दोनों डायग्राम निकालनी है, ओके। उसके बाद आपको बोलना है, कंसिडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, okay, in which gas is compressed over, weights are placed over the piston, okay। After when we remove all the weights, the piston moves from bottom dead center to top, okay, that is a gas expand, then we get position of system from one point to next directly second point, then we not get any equilibrium state between state 1 to 2, that is a non quasi-static process। But when we remove weight one by one, then we get continuous series of equilibrium state, okay, that is called as a quasi-static process, okay। Now we start next topic, okay, there are total 4 laws of thermodynamics, okay। First is the zeroth law, next first law, third second law and last is the थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो है वो 4 लॉज है, ओके, टोटल 4 लॉज है। उसमें से सबसे पहला है जेरोथ लॉ, उसके बाद फर्स्ट लॉ, नेक्स्ट सेकंड लॉ एंड लास्ट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो कि जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि आपके एनर्जी पे डिपेंड है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो कि आपकी एंट्रोपी पे डिपेंड है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, ओके। इस तरह आपके 4 लॉज क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। जेरोथ लॉ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ एनर्जी, सेकंड लॉ एंट्रोपी, थर्ड लॉ
एंट्रोपी इज वैल्यू दैट इज 0। ओके, तो आपको वो डिफाइन करता है। ऐसे आपके 4 लॉज क्या होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो लॉ है वो आपका लॉ है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो क्या है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैंने बताया आपका वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या है, क्या डिफाइन करता है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जैसे कि कंसिडर कर दो 3 बॉल है। ओके, 3 बॉल है। ओके, कंसिडर करते 3 सिस्टम्स। ओके, क्या बोला मैंने, 3 सिस्टम। 3 सिस्टम के नाम दिए मैंने ए बी सी। आप देख रहे हैं ए बी सी। ओके, अगर मैंने कहा बी एंड सी, बोलो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बी एंड सी। बी एंड सी आर थर्मली इक्विलिब्रियम विथ ए। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बराबर है। अगर मैंने कहा बी एंड सी आर थर्मली इक्विलिब्रियम विथ ए, मतलब क्या है, बी का और ए का टेम्परेचर सेम है, सी का और ए का टेम्परेचर सेम है, बराबर है। मतलब क्या होगा, बी और सी का भी टेम्परेचर सेम होगा, बराबर है। वही आपको जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है। व्हेन 2 systems are thermally equilibrium with third system, then these 2 systems are also in thermal equilibrium with each other। मतलब देखो, if 2 bodies A and B are in thermal equilibrium with third body C, then A and B also thermal equilibrium with each other, that is called as a zeroth law of thermodynamics। ओके, समझ गए। मतलब कोई 2 सिस्टम थर्ड सिस्टम से इक्विलिब्रियम होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम, देन दिस 2 systems आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज अ जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट दो डेफिनेशंस आपको डिफाइन करनी है, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ओके, व्हाट इज अ पॉइंट फंक्शन एंड व्हाट इज अ पाथ फंक्शन। ओके, उससे पहले मैं आपको क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में चला जाता हूँ। क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में मैंने क्या दिखाया, देखो। ओके, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में देखो, आप देख सकते हैं क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में ग्राफ दिखाया है। देखो 1 to 2। फर्स्ट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट था, जब पिस्टन नीचे पोजीशन में था, जहां पे आपका गैस क्या था, कॉम्प्रेस्ड था। ओके, गैस कॉम्प्रेस था, मतलब वहां पे क्या था, आपका प्रेशर ज़्यादा था और वॉल्यूम क्या था, कम था। जिससे कि प्रेशर ज़्यादा है मतलब क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा उस पॉइंट पे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या है, वो स्टेट ऑफ द सिस्टम है। मतलब अगर सिस्टम मैंने कंसिडर कर दिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज आवर सिस्टम। ओके, तो सिस्टम की स्टेट क्या थी, तो सिस्टम की स्टेट क्या थी उस वक्त, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर रहे थे। मतलब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, बराबर है। मतलब यहाँ पे देखो, जो स्टेट है वो कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम, कंडीशन ऑफ सिस्टम डिफाइंड बाय स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या कर रहा है, जो सिस्टम की कंडीशन है वो हम कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट से। ओके, मतलब उस स्टेट से डिफाइन कर रहे हैं। मतलब वो क्या है, वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिपेंड है, बराबर है। मतलब वो जो होगा वो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, पॉइंट फंक्शन है। मतलब वो फर्स्ट पॉइंट पे डिपेंड है। जब मेरा पिस्टन डायरेक्टली सेकंड पॉइंट तक जा जाएगा, मतलब टॉप पोजीशन जगेगा, तब उसका प्रेशर क्या रहेगा, P2 रहेगा, वॉल्यूम V2 रहेगा और टेम्परेचर T2 रहेगा। वो कहाँ पे डिफाइन होगा, आपके सेकंड पॉइंट पे डिफाइन होगा। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम कहाँ पे डिफाइन करती है, आपके सेकंड पॉइंट पे डिफाइन करती है। तो वो क्या हो गया, आपके पॉइंट फंक्शन हो गए। पाथ फंक्शन मतलब क्या है, देखो, सिस्टम में कितना वर्क ऐड हो गया, सिस्टम में कितनी हीट ऐड हो गई या रिजेक्ट हो गई, वो कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी आपका ग्राफ पीवी डायग्राम, देखो एक इंपॉर्टेंट है, पीवी डायग्राम एक रहती है और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम रहती है। अब ये पीवी मतलब क्या है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। टीएस डायग्राम मतलब क्या है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अभी यहाँ पे देखो, पहले पॉइंट जब मैंने कंसिडर किया था फर्स्ट पॉइंट पे हम वर्क डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं। मतलब क्या है, देखो मैं अभी खड़ा हूँ। ओके, तो खड़ा हूँ मतलब यहाँ पे मेरा प्रेशर अलग होगा, वॉल्यूम मेरा सेम ही रहेगा, प्रेशर अलग है, मेरा टेम्परेचर अलग है फर्स्ट पॉइंट पे। अगर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा वर्क कंप्लीट कर दिया, मतलब थोड़ा सा काम कर दिया। ओके, थोड़े काम करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया, P1 और T1, और काम करने के बाद मेरा क्या हो गया, P2 और T2,
बराबर है। मतलब उस वक्त मेरे प्रेशर कहाँ पे डिफाइन हो गया, स्टेट पे डिफाइन हो गया, मतलब वो प्रेशर टेम्परेचर क्या हो गए, पॉइंट फंक्शन हो गए। ओके, लेकिन जो मैंने जो काम कर दिया कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्क बोलते हैं। और मेरे काम करते वक्त मतलब मैंने क्या कर दिया, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जैसे मैंने पाथ फॉलो की उतना मैंने क्या कर दिया, काम कर दिया। और उस काम करते वक्त मेरे जो टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गए वो क्या हो गए, मेरी हीट ट्रांसफ़र और हीट एब्सॉर्ब हो गई। ओके, मतलब देखो जो पॉइंट 1 कैसे डिफाइन कर दिया मैंने, प्रेशर टेम्परेचर से। ओके, हीट एंड वर्क से पॉइंट 1 डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा इतना वर्क ऐसे मैं नहीं डिफाइन कर सकता। वर्क कब होगा, जब मैं सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूँ, तो उस पाथ जो फॉलो किया है उससे मैंने क्या कर दिया, उतना वर्क कंप्लीट कर दिया और हीट ट्रांसफर कर दिया। बराबर है। तो सिंपली मैं बोल देता हूँ, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, सिंपली आपको बताता हूँ व्हाट इज पॉइंट फंक्शन और व्हाट इज पाथ फंक्शन। ओके, पॉइंट फंक्शन मतलब क्या है, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूँ। ओके, तो मुझे जो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको 3 डेफिनेशन बोली थी, स्टेट, पाथ, प्रोसेस। स्टेट मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ सिस्टम एट पर्टिकुलर पॉइंट और मूवमेंट। ओके, उस मूवमेंट की पॉइंट पे जो रहती है उसको हम स्टेट बोलते हैं। मतलब पॉइंट फंक्शन मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी आपको स्टेट डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं सिस्टम की, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट फंक्शन। ओके, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट देन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आल्सो चेंजेस। बराबर है, जैसे कि स्टेट चेंजेस हो रही है तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। फर्स्ट स्टेट पे प्रेशर क्या था, क्वासिस्टैटिक में ज़्यादा था। सेकंड स्टेट में क्या था, प्रेशर कम था। फर्स्ट स्टेट में वॉल्यूम कम था, सेकंड स्टेट में क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। मतलब जब भी आपकी सिस्टम चेंज होगी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, प्रॉपर्टी भी आपके क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वो प्रॉपर्टी आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड है तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट फंक्शन। अगर वो जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो आपके पाथ के ऊपर डिपेंड है, पाथ मतलब क्या है, जो सिस्टम पासेस थ्रू कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। बराबर है, अगर आपकी प्रॉपर्टी उस पाथ के ऊपर डिपेंड है तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। अगर आपकी प्रॉपर्टी उस स्टेट के ऊपर डिपेंड है तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट फंक्शन। ओके, समझ गए। ओके, पॉइंट फंक्शन मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड है दैट इज अ पॉइंट फंक्शन। अगर प्रॉपर्टी आपके पाथ के ऊपर डिपेंड है तो वो क्या हो गई, पाथ फंक्शन। बराबर है। अभी पॉइंट फंक्शन में 2 पॉइंट्स है और पाथ फंक्शन में 2 पॉइंट्स है। पॉइंट फंक्शन में 2 पॉइंट्स क्या है, पॉइंट फंक्शन हम जो है देखो, पहले पॉइंट पे क्या था, प्रेशर ज़्यादा था। क्वासिस्टैटिक में देखो, पहले इसमें क्या था, प्रेशर ज़्यादा था, और सेकेंड पॉइंट में क्या था, प्रेशर कम था। तो हम चेंज इन प्रेशर कैसे लिखेंगे, P2 P1 माइनस P2। ओके, नहीं तो हम चेंज इन प्रेशर निकाल तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें एक्सपांड हो रहा है, पहले तो गैस कॉम्प्रेस था, बाद में वो एक्सपांड हो रहा है। बराबर है, अगर चेंज इन प्रेशर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। मतलब जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या होगा, आपका एग्जैक्ट होगा। ओके, इसलिए इन पॉइंट फंक्शन द प्रॉपर्टी हैज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हेंस डिजिग्नेटेड बाय टर्म डी। मतलब क्या है, बीच वाला कुछ मुझे नहीं चाहिए, कौन से पाथ से फॉलो किया कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट स्टेट और फाइनल स्टेट इन दोनों का ही क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। इसलिए वो क्या हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल और डिफाइंड बाय टर्म डी। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1, इसका इंटीग्रेशन लिया तो वहाँ पे क्या आ गया, P2 माइनस P1। ओके, पॉइंट फंक्शन मतलब क्या है, प्रॉपर्टी डिफाइंड बाय इट्स स्टेट that is called as a point function. Point function has exact differential, okay, and designated by terms d, capital D. Okay, that is called as a point function. Now we studied path function. path function मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब क्या है, आपका पहला पॉइंट कौन सा था और दूसरा पॉइंट कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड्स नहीं है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, आपने कौन सी पाथ फॉलो की, आपने कौन सी पाथ फॉलो की उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड है
उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, बराबर है। अभी पाथ फंक्शन में कौन कौन से पाथ फंक्शन रहते हैं, तो हीट एंड वर्क। अभी वर्क कैसे रहता है, अगर मैं कंसिडर करता हूँ एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाना है, ओके, एक तो मैं स्ट्रेट जा सकता हूँ, नहीं तो मैं कर्व से जा सकता हूँ। अगर स्ट्रेट जाऊँगा तो मुझे क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। वही मैं घूम के जाऊँगा तो मुझे क्या लगेगा, उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, घूम के जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा, मतलब मुझे ज़्यादा वर्क मेरा हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेट जा रहा हो तो मुझे क्या होगा, कम वर्क लगेगा। मतलब ये डिपेंड किस पे है, पाथ के ऊपर डिपेंड है, ओके। तो उसीलिए जो प्रॉपर्टी है जो पाथ के ऊपर डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं, हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल कैसे रहता है, वर्क। अभी वर्क देखो, मैंने कंसिडर कर दिया चेंज इन वर्क डन। मैं इसे तो नहीं लिख सकता कि W2 माइनस W1, क्यों नहीं लिख सकता, तो मैंने पाथ अगर मैंने घूम के चला गया तो मुझे W2 ज़्यादा मिलेगा और W1 कम मिलेगा। W1 तो कम ही है, W2 क्या मिलेगा, ज़्यादा मिल जाएगा। अगर स्ट्रेट जा रहा हूँ तो W2 क्या मिलेगा, कम लगेगा। मतलब मैं W2 माइनस W1 इज इक्वल टू DW नहीं लग सकता चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन कब लिखूंगा, कैसे मैंने पाथ फॉलो किए, कर्व से फॉलो किए या स्ट्रेट फॉलो किए, तो उसके ऊपर क्या है, अपना पाथ डिपेंड है, वर्क डिपेंड है। सो पाथ फंक्शन मतलब क्या है, फंक्शन दैट इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स on path, not depends on the state of the system, that is called as a path function. So path function is a inexact differential, okay। जैसे पॉइंट फंक्शन क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, लेकिन पाथ फंक्शन क्या है आपका, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ओके। दैट इज डिफाइंड बाय डेल्टा, ओके। पॉइंट फंक्शन कैसे था, कैपिटल डी डेरिवेटिव स्मॉल डी, लेकिन पाथ फंक्शन कैसा है आपका, डेल्टा है, ओके। सो चेंज इन वर्क डन इज नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1। जैसे कि चेंज इन प्रेशर क्या था, P2 माइनस P1, लेकिन चेंज इन वर्क डन इज नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1, ओके। समझ गए आप पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ओके। तो आपको डिफरेंस या डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज पाथ फंक्शन, और डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो डिफरेंस कैसा होगा, एक साइड लिखता हूँ पॉइंट, दूसरे साइड लिखता हूँ पाथ। Point function, the property which depends on state of the system. Path function, the property which depends on path of the system. In point function, exact differential. In path function, inexact differential. In point function, designated by term D. In path function, designated by delta, okay। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है चेंज इन प्रेशर का इंटीग्रेशन लेके P2 माइनस P1। सिमिलरली वर्क डन का क्या होगा, नॉट इक्वल टू W2 माइनस W1, ओके। तो ये हो गए आपके पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ओके। इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पढ़ लेंगे, ओके। जो भी असाइनमेंट्स अभी मैं देने वाला हूँ ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है, ओके।